um, at 5:30 a.m. Okay, okay, right. And what did you do after that? Like after waking up, what did you do? Uh, Making tea for my husband and ready for prayers Okay, and okay. seeing my. Tell me something good. Okay, sorry. Yes. Sorry. Okay. So I was asking you that tell me something good that happened today. Um, Nothing too much good, but I Yeah. no, nothing good. Okay. Okay. Any good thing I. Okay. Was there anything bad that happened today? Nothing. Okay. Okay. Right. Thank you Yeah. so much. Okay. 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 Right. Perfect. Okay. Thank you. Let me see who else is there. I don't think. Okay. Right. I don't think anyone has joined so far. Okay. Okay, Saida, could you please open your mic? Yes. Okay, right. Right. Saida, I wanted to know that, like, how you usually spend your weekends? How do you usually spend your weekends? Uh, Mostly I am. Um, I have a lot of pending works because I'm a working woman. So I have Okay. lots of work pending Mhm. for the day of Sunday. Okay. Okay. And those are personal, like, things to do, or is it shopping, or is it household chores? What is it like? If you feel All comfortable to. all things for myself and for my house. Uh, all things. ग्रोसरीज भी होती हैं कभी और घर के काम सारे होते हैं जो पेंडिंग होते हैं वीकली जो मुझे करने होते हैं. Okay. And do you enjoy your job? Very much. Okay. What is the best thing about your job? Uh, मैं जितनी बातें सब कुछ जो जानती हूँ वो सब जो Mhm. है वो लोगों को बता सकती हूँ. और जिन लोगों को बता रही होती है बोले बड़े गौर से सुन रहे होते हैं बड़े मजे से उसका जो है वो आंसर कर रहे होते हैं मुझे. Okay. अच्छा लगता Okay. है Okay. और मुझे भी Okay. अच्छा Okay. लगता है By the way, बात. आप टीचिंग करती हैं ना? हम्म. Okay. Okay. Right. Thank you so much. Okay. So Mehak is there. Assalamu alaikum. Mehak, how are you? Walaikum assalam, ma'am. I'm fine. What about you? I'm good. Thank you. How was your day? My day was very boring Why? because nothing to do. Okay. At what time did you wake up? I wake up 12 p.m. Sorry, I wake up 12 p.m. You woke up at 12 p.m. Okay. 12 What did p.m. you? Okay. What did you do after that? After that, I offered namaz and then I eat my meal. Okay. That's it. Okay. Okay. Mehak, how do you usually spend your weekends? I usually spend my weekend, ma'am, nothing to do. You have I nothing to do think, on the weekend? yes, ma'am, nothing to do. Okay, nothing special to do, right? Yes, ma'am, nothing special to do. Okay, 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 okay. Right, thank you so much. Assalamu alaikum. Savera, how are you?
Walaikum salam. I'm fine, and you? I'm good, thank you. How was your day? My day was busy, very busy. So you were swamped with work? Yes, Okay, I okay. swam. I was swamped with work. Okay, that's good. Right, being busy is a blessing. Okay. At what time did you wake up in the morning? I get up early 6 o'clock. Okay, you get up at 6 o'clock. All right. Okay. What do you do after that? I going to madrasa. I go to madrasa. Okay. Okay. Right. Thank you. Thank you so much. All right. So we are going to discuss model verbs today. आज हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि कैन कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, वुड, ये कहाँ लगने हैं. ठीक है, तो इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है. ये सारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये बेसिकली किसी मुमकिनात को या कि कोई चीज जो पॉसिबल हो सकती है या पॉसिबल नहीं हो सकती है उसके बारे में ये उस सिचुएशन में हम लोग मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं जहां पर हमने किसी चीज की पॉसिबिलिटी कि कुछ मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता उस सिचुएशन में, या किसी की कुछ सलाहियत बतानी हो या अपनी कुछ सलाहियत बतानी हो उस सिचुएशन में, जब हमने बात को एक्सप्लेन करना है तो हम लोग मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन कहाँ यूज होता है. कैन होता है किसी की सलाहियत, अपनी सलाहियत या किसी और की सलाहियत के बारे में जब बात करेंगे तो हम कैन का यूज करेंगे. आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ. आई कैन कुक, मैं कुकिंग कर सकती हूँ. आई कैन ईट, मैं खाना खा सकती हूँ या सकता हूँ. तो ये आपकी एक सलाहियत कह लें, खसूसियत कह लें, कुछ भी कह लें, या आपकी एबिलिटी इंग्लिश में कह लें कि आपकी एबिलिटी है, तो हम लोग इस सिचुएशन में कैन लगाते हैं. कुड हम वहां लगाते हैं जहां पर कोई चीज मुमकिन हो सकती है, हो सकता है ऐसा कोई काम हो. तो जब हमने हो सकता है के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है तो फिर हम लोग कुड यूज करेंगे. कैसे? इट कुड रेन, बारिश हो सकती है. इट कुड नहीं, ही कुड गो, वो जा सकता है. ठीक है, मतलब एक मुमकिन जब कोई सिचुएशन हो ना कि हो सकता है ऐसा हो, उस सिचुएशन में हम कुड यूज करते हैं. जहां पर आपने किसी मुमकिन सिचुएशन की बात करनी, वहां फिर आपने कैन नहीं लगाना, वहां पे आपने कुड लगाना है. कैन जब आपने अपनी किसी सलाहियत के बारे में, अपनी या किसी और की किसी सलाहियत, खसूसियत, एबिलिटी के बारे में बात करनी है तो हमने कैन लगाना होता है. मे हम कहाँ लगाते हैं? मे हम लगाते हैं परमिशन देने की सिचुएशन में. यू मे गो, तुम जा सकते हो. यू मे ईट, तुम खा सकते हो. जब हमने किसी को किसी काम की इजाजत देनी है तो हमने मे का यूज करना. ठीक है, अब आ जाते हैं जी माइट, एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. ऊपर क्या है कुड पे, एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई मुझे बताएगा वैसे ही, अगर किसी का कोई गैस हो. मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर कोई इसमें डिफरेंशिएट कर पाए मेरे बताने से पहले. जी, यस, जी जी बताएं. किसी ने माइक ओपन की है? एनीवन, कोई आप गलत भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई ट्राई करे इसके बारे में बात करने की. जी, मैं बताऊं अगर आप लोग बताना चाहे. किरत, अस्सलाम वालेकुम. यस किरत, हाउ आर यू? I am fine, ma'am. ओके, हाउ वाज योर डे? My day was good. ओके, किरत आप बता सकती हैं कुड और माइट में क्या फर्क है? मैंने अभी ज्वाइन की. चलें ठीक है, ओके. अच्छा मैं बता देती हूँ, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. अच्छा, कुड में ये होता है, कुड हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पर हमें लगता है कि काम हो सकता है. माइट हम उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, लेकिन आप श्योर नहीं होते उसके बारे में. मतलब आपको
बहुत ज्यादा डाउट होता है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो कुड में आप 80% आपको लग रहा होता है कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन माइट में आपको 50%, आप 50-50 होते हैं कि हो सकता है, हो सकता है ना हो। तो जब आपके पास, आपके दिल में इतना शक हो, तो उस सिचुएशन में आप माइट यूज करेंगे। जब आपके दिल में शक की रेशो कम हो और आपको लगता हो कि हाँ इसके हाई चांसेस हैं, ये काम हो सकता है, तो उसमें कुड यूज होगा। इट कुड रेन। जब आप गहरे बादल देखते हैं, आपको देख के लगता है कि अच्छा गहरे बादल आ गए हैं, तो 80% चांसेस है कि बारिश होगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बादल नहीं आए और हवा चल रही है हल्की हल्की, तो फिर आप कह सकते हैं इट माइट रेन। क्योंकि उस सिचुएशन में आप बादल नहीं देख रहे, आपको कोई ऐसी क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रही, कोई ऐसा क्लियर इशारा नहीं आपको नजर आ रहा जिससे आपको लगे कि हो सकता है। ठीक है, तो उसमें फिर आप माइट यूज करेंगे। लेकिन जहां पे आपको लग रहा है कि सरकमस्टांसेस और जो चीजें हो रही हैं उसमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है किसी काम के होने की, तो फिर हम लोग कुड यूज करते हैं। अच्छा, मस्ट कहाँ यूज करते हैं? एक्सप्रेसिव नेसेसिटी। हम लोग उस सिचुएशन में मस्ट यूज करते हैं जहां पर कोई काम हर हालत में हमने, जब उर्दू में अगर हम कहें ना ये हर हाल में करना है, या ये हर हाल में होना चाहिए, या ये हर हाल में करो, उस सिचुएशन में हम लोगों ने मस्ट यूज करना, हर हाल में। उसको इंग्लिश में कहेंगे मस्ट। यू मस्ट स्टॉप। तुम्हें अब हर सूरत रुक जाना चाहिए। यू मस्ट गो। तुम्हें चले जाना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि जाना चाहिए, इसमें बहुत, इसमें कोई शक या शुभा या निटी ग्रिटी नहीं है। इसमें आपको, आपने अगले को हुक्म दे दिया, अगले पे आपने एक एक हुक्म जारी कर दिया, उसको एक्सप्रेस कर दिया कि उसने ये काम हर सूरत में करना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग मस्ट यूज करते हैं। हम शेल कहाँ यूज करते हैं? शेल ऑफर सजेशंस, सजेशंस। ओके, ये जो वर्ड है SUGGESTIONS, जिसका मतलब होता है मशवरा या सलाह, तो इसको प्रोनाउंस किया जाता है सजेशन। ठीक है, तो ऑफर सजेशन। शैल वी डांस, के आप, कोई आपको सजेस्ट करता है, आपको कोई मशवरा देता है, आपको कोई सलाह देता है, आपसे कुछ कोई बात इस सिचुएशन में करता है कि आपकी राय उसको मिल जाए, तो उस सिचुएशन में शैल यूज करते हैं। जैसे कि शैल वी गो, क्या हम चलें? शैल वी ईट, क्या हम खा सकते हैं? शैल वी राइट, क्या हम लिख सकते हैं? तो उस सिचुएशन में हमने शैल यूज करना। शुड, एक होता है मस्ट, जहां पे आपने अगले बंदे को कह दिया कि हर हाल में ये काम करो। शुड होता है कि जब आप किसी को मशवरा देते हैं ना कोई काम करने के लिए, तो फिर आप उसको शुड में उस बात को करते हैं। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। एक है तुम पढ़ोगे, या तुमने पढ़ना है, तो फिर ये मस्ट हो गया। यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट ट्राई, तुमने हर हाल में ट्राई करना है, तुम हर हाल में पढ़ोगे, तो उसमें मस्ट आ गया। यू शुड स्टडी या यू शुड ट्राई, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। जब आप किसी को सलाह दे रहे, मशवरा दे रहे, तो फिर आपने क्या कहते हैं, ये शुड यूज करना। वुड यूज होता है, वुड एक्सप्रेसेस प्रेफरेंस। आई वुड लाइक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगी। जब आपने अपनी कोई चॉइस बतानी है, अपना कोई, आपने अपना बताना है कि आपकी क्या पसंद है या ना, हाँ, पसंद की सिचुएशन में आप बताते हैं कि आपकी क्या चॉइसेस हैं और आप किस चीज को पसंद करते हैं, तो फिर आप इसमें वुड यूज करेंगे। आई वुड लाइक टी, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं चाय पीना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू हैव टी। या मैं चाय पीती हूँ, मैं, मुझे चाय पीना पसंद है, तो आई वुड, मैं चाय पीना पसंद करती हूँ, तो आई वुड लाइक टी। ठीक है, आपसे कोई पूछता है वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, तो आप क्या जवाब देंगे? आई वुड लाइक टू हैव टी, कि मैं चाय और कॉफी में से चाय लेना पसंद करूंगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग वुड यूज करते हैं। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन? मैं इसमें मे के लिए पूछना चाह रही थी कि बच्चे क्लास में एंटर होते हैं तो मे आई कम इन बोलते हैं, तो ये मे आई कम इन वो लोग हमसे परमिशन ले रहे होते हैं, तो जी, हालांकि हालांकि ये होता यूं है कि जब आप परमिशन दे रहे होते हैं, तो तब आप कहते हैं यू मे गो। ओके। तो फिर बच्चों को तो क्या, ये आप, या तो बच्चे जो है वो कैन भी बोल रहे होते हैं, कुछ बच्चे आते हैं जो कैन बोलते हैं, कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं मे आई कम इन, तो ये इसमें सही सेंटेंस क्या होता है जो बच्चों को बोलना चाहिए? ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया, मैं भी इसको एड्रेस करती हूँ, बाकियों के भी ले लूँ। थैंक यू। ओके। जी मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम कहते हैं मैं आए, मैं बताऊं, तो उसका मुझे थोड़ा क्लियर कर दें कि ये। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। यही सबसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ओके, मैं इसको एड्रेस करती हूँ। मैंने कहा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, मैं इकट्ठे एड्रेस कर लूँ। जी, मैं, और इसके, जी 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 जी,
ये वर्ड मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपकी सॉरी वॉइस थोड़ी नहीं आ रही सॉरी, थी। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? वुड। सॉरी, वुड। ओके, ठीक, थैंक यू। मैं बता देती हूँ। और कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी। ओके, राइट। अच्छा, ये जो मे होता है ना, इसमें हम लोग स्टूडेंट्स परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, मे आई मे आई टॉक टू यू। यहाँ पर जब आप इसमें ना, प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस ये होता है कि आपने जब पोलाइटली किसी से परमिशन लेनी है, यही मैंने एक्सप्लेन करना था। जब आपने किसी से पोलाइटली परमिशन लेनी, मैंने आपसे परमिशन लेनी है, आपने मुझसे परमिशन लेनी, इनमें डिफरेंस है। आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, आप मुझसे कहेंगे मे आई गो, तो ये एक फॉर्मल आपने पूछ लिया मेरे से। कैन आई गो, ये आप एक दूसरे से जब आप बात करेंगे ना, इनफॉर्मली आप एक दूसरे से इजाजत लेते हैं, तो फिर आप उसमें कैन कहते हैं। क्लासेस में मे आई कम इन ठीक होता है उस सूरत में, क्योंकि टीचर होता है, टीचर से परमिशन आपने ज़्यादा पोलाइटली उससे लेनी होती है, रिस्पेक्टफुली लेनी होती है। तो ये रिस्पेक्टफुली परमिशन लेने के लिए मे यूज होता है, और आपने जब परमिशन देनी है उसी रिस्पेक्ट के दायरे में, तो फिर आप मे कहेंगे। यू कैन कम इन आप नहीं कह सकते, आपको यही कहना है कि यस यू मे कम इन, यू मे गो टू ड्रिंक वाटर। अक्सर टीचर्स भी गलती कर जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं यस यू कैन। वो फिर ठीक है, उसमें ग्रामेटिकली कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ना थोड़ी इनफॉर्मल परमिशन गिविंग होती है। परमिशन टेकिंग में भी मे यूज किया जाता है, परमिशन गिविंग में भी। और परमिशन भी वो जो आपने फॉर्मली किसी से लेनी होती है, इजाजत वो जो आपने किसी से फॉर्मली लेनी होती है, या फॉर्मली किसी को देनी होती है। परमिशन फॉर्मेलिटी सिर्फ जूनियर्स या स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, सीनियर्स के लिए होती है। तो आप यू कैन कहेंगे तो वो आपका रूड लगेगा, ठीक है, और फॉर्मेलिटी के हिसाब से खराब लगेगा। तो आपने यू मे के कॉन्टेक्स्ट में ही जवाब देना है। फॉर्मली परमिशन देना और फॉर्मली परमिशन लेना, इन दोनों सिचुएशंस में हम लोग मे यूज करते हैं। इनफॉर्मली जब दोस्तों में बैठे हैं, गपशप है, या कॉलीग्स हैं आपस में, या कोई आप आपस में बैठे हुए हैं, तो फिर आप बहन भाई हैं आपस में जैसे, तो फिर आप कैन यूज करेंगे, और उसमें आप देने की सूरत में भी कैन यूज करेंगे। जैसे कि कैन आई टेक योर पेंसिल, आप अपने क्लास फेलो से कहते हैं, तो यस यू कैन, वो ठीक है, उसमें ये इनफॉर्मल होगी, इसमें कोई वो नहीं है, आप दोनों स्टूडेंट्स हैं। आपने टीचर से कहना है कि मुझे पेंसिल चाहिए, टीचर की या किसी और की, तो फिर आप कहेंगे मे आई बोरो द पेंसिल मैम, या मे आई गेट दिस पेंसिल। तो फिर टीचर को क्या जवाब देना है? यस यू मे टेक दिस पेंसिल। तो ये फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का फर्क। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या था? वुड। ओके, तो वुड बेसिकली वहां यूज होता है जहां पर आपको कोई चॉइस दे दी जाती है ना, कि आपने चाय पीनी है या कॉफी पीनी है, उसमें से आप एक चीज पिक करते हैं, तो फिर आप उसमें वुड यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, जहां पे ऑप्शंस देनी है ना आपने दो चीजों की, या आपने एक ऑप्शन पिक करनी है दो चीजों में से या तीन चीजों में से, उस सिचुएशन में वुड यूज होता है। ये कम्युनिकेशन टू वे होती है ना, दो लोगों के या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। फर्ज करें दो लोगों के बीच में हो रही है, मैं आपसे आके पूछती हूँ वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तो फिर आप कहेंगी आई वुड लाइक टू हैव टी। जहां पर आपने एक चॉइस पिक कर ली, तो उस सिचुएशन में हम वुड यूज करते हैं, पूछने वाला भी वुड यूज करेगा और बताने वाला भी। ठीक है, कितने लोगों को समझ आ गई, कितने लोगों को नहीं आई? आ, ये मे वाली बात क्लियर हो गई है? प्लीज रेज योर हैंड्स। जी जी और मैम, वुड, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, ओके। अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी वोकैबुलरी कर लेते हैं। ओके, ये तो सिंपल वर्ड, चले। ओके, ये कुछ दोबारा पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। अभी मैं आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड्स करवा रही हूँ, इंशाल्लाह फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वोकैबुलरी का मोड चेंज करेंगे। पहला वर्ड है प्रोएक्टिव। शी टेक्स इनिशिएटिव एंड स्टार्ट्स प्रोजेक्ट। ऐसा इंसान जो पहल करता है ना, उसको प्रोएक्टिव कहते हैं। किसी भी काम में पहल करने वाले को प्रोएक्टिव कहते हैं। डिटेल ओरिएंटेड वो इंसान होता है जो हर छोटी छोटी डिटेल को, हर छोटी छोटी चीज को बहुत बारीक बीनी से देखता है, उसको डिटेल ओरिएंटेड कहते हैं। डिपेंडेबल हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगी। सिंसियर एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई आपके साथ मुखलिस है,
तो उसको हम सिंसियर कहते हैं। एम्बिशियस वो होता है जो जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं और वो उन कामों के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है, उस बंदे को हम एम्बिशियस कहते हैं। काम माइंडेड वो होता है जो प्रेशर में भी, लोग होते हैं ना जिनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही होती है, उस सिचुएशन में भी वो अपने आप को रिलैक्स रखते हैं और दूसरों को भी रिलैक्स रखते हैं, उनको काम माइंडेड कहते हैं। ओपन माइंडेड वो है जो दूसरों के आइडियाज को सुनते भी हैं, दूसरों के आइडियाज को एक्सेप्ट भी, अपनी नहीं सुनाई जाते, या उर्दू में अगर हम लोग इनफॉर्मली कहें तो अपनी नहीं मारी जाते, दूसरों की भी सुनते हैं, उनके आइडियाज को भी एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं। हेल्पफुल एक कॉमन वर्ड है, मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। वो जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मिथोडिकल, हर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वर्क्स वेल। कि मिथोडिकल वो होता है जो मेथड वाइज चलता है, कि एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप। बाज लोग होते हैं ना जिनको बड़ा होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चले, पहले एक बात को समझें फिर दूसरी को फिर तीसरी को। बाज लोग होते हैं डिस्कशंस में कंफर्टेबल होते हैं, बाज लोग होते हैं जो बड़ी स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने में कंफर्टेबल होते हैं। ये ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी चीजें वेरी करती हैं। आप लोगों ने कल क्लास में मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में इनमें से क्या चीज वो है डोमिनेंट आपने अभी तक देखी है। मैं प्रोएक्टिव हूँ, डिटेल ओरिएंटेड हूँ, डिपेंडेबल हूँ, सिंसियर हूँ, एम्बिशियस हूँ, काम माइंडेड, ओपन माइंडेड, हेल्पफुल, मेथोडिकल। इन 9 पर्सनैलिटी ट्रेट में से आपको क्या लगता है मेरे बारे में, कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज मेरे अंदर डोमिनेंट है? ये आपसे मैं कल पूछूंगी, उसमें आपने एक रीजन भी मुझे देनी है और थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है? और इसमें कोई भी बंदा ये सोच के ना इसको करे कि ये हम टीचर के बारे में बात करें। आप जो भी मुझे लकब देंगे या जो पर्सनालिटी ट्रेड भी मेरे लिए पिक करेंगे, आई वुड हैप्पीली एक्सेप्ट इट। और अगर कोई मुझे सजेस्ट करना चाहे कोई चीज इस सिचुएशन में, तो वो भी मैं बहुत ओपन माइंडेडली और हैप्पीली लूंगी। जाहिर है वो मेरे भले के लिए होगी। ठीक है? तो ये आप लोगों की कल की असाइनमेंट हो गई है, होमवर्क जिसको कह लें आप। और दूसरी चीज ये मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। दूसरी चीज हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, पहले वो करने से पहले मुझे कौन बताएगा अभी तक हमने कौन कौन से इडियम्स करनी है? जी, कौन बताएगा? लास्ट क्लास में कोई मैं, जो इडियम। जी जी जी। यस। हाँ, आपने अंडर द वेदर वेदर एक जी, किया इंडियम, और दूसरा वो जो ब्लू मून वाला। वंस इन अ ब्लू मून। जी जी। हाँ, वंस इन ब्लू मून। बस ये दो ही ठीक थे, है। ओके। और भी थे। और एक आज मैं देने लगी हूँ। और इसके अलावा मैंने जो वोकेबलरी वर्ड्स अभी तक करवाए हैं, उनमें से कोई एक वर्ड आप रिपीट कर सकें अगर। चले वो मैं पूछती हूँ, आज का मैं ईडियम दे देती हूँ। ओके। आज जो ईडियम है आप लोगों के लिए वो है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत आसान हो, कोई काम जो करने में बहुत आसान लगे आपको, आपके लिए बहुत इजी हो करना, उसको आप कहते हैं पीस ऑफ केक। जैसे अगर मैं कहूँ टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कि मेरे लिए पढ़ाना एक बहुत आसान सा काम है, तो उसमें मुहावरा क्या यूज करेंगे? पीस ऑफ केक। अब मैं आपसे बारी बारी पूछूंगी, आयशा से पूछती हूँ सबसे पहले। आयशा, टेल मी व्हाट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? I am fine, and you? आई एम गुड, थैंक यू। यस, टेल मी समथिंग दैट इज पीस ऑफ केक फॉर यू। I think painting. ओके, मेक अ सेंटेंस। Mm, पेंटिंग इज painting अ, is a यस, piece of cake फॉर मी। for me. थैंक यू। यस महक, व्हाट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू? Designing is the piece of cake for me. इज अ पीस ऑफ केक। ओके, थैंक यू। किरत, व्हाट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू? It was a piece of cake. सॉरी? The test was a piece of cake. The test was a piece of cake for you. Okay, thank you.
Saida, what is a piece of cake for you? Reading books and memorize them. Reading books and Memorize them. Books को reading book, उनको याद reading. करना, books पढ़ना. Okay, okay. Reading books and memorizing them is a piece of cake for me. Yes. Okay, thank you. Savera. No, Mehak, I think Mehak. Savera, okay, I'll ask Savera first. Savera, yes. What is a piece of cake for you? Reading and test is a piece of cake for me. Reading what? Reading and test. Reading and test. Okay, Yes. test means what? Test. अगर कोई असाइनमेंट वगैरह हाँ, होता है उसके बाद. okay, okay, right, right. Thank you so much. महक, आपसे हो गया या आप रह गई हो? जी जी मैम, हो गया। Okay, thank you so much. Right. So today, ma'am is there. Yes, ma'am is there. Ma'am Zahra is there. So वो आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हैं, इसलिए मेरा पार्ट यहाँ पर एंड होता है. थैंक यू सो मच. मैं मॉडल वर्ब्स और आपका जो होमवर्क है वो और ये ईडीएम जो है आज का, ये मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ. और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, आप क्लास के बाद मैम से डिस्कशन के बाद मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में. एनी टाइम यू मोर देन वेलकम. थैंक यू सो मच. अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है या किसी ने कोई थॉट शेयर करना है तो प्लीज वी हैव 2 minutes. अगर किसी ने कोई बात करनी है, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग प्लीज. चले सारे माइक ओपन करके मुझे अल्लाह हाफिज कर दें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज. अल्लाह हाफिज. जज़ाकल्लाह. आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो. सो ओवर टू मिस ज़हरा. मैम ज़हरा, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Okay. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम। This is Gulfreen Zara, the admin of English Spoken Program. आज हम आप सबसे वो फीडबैक लेना चाहते हैं जो हमारी क्लास को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके. So your reviews are extremely valuable. So let's begin. ठीक है, सब देना चाहते हैं ना? बिल्कुल इजीली हो जाए और ना मुझे ऑनेस्टली बताना है. ठीक है. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, कोई भी बारी बारी एक एक करके दे दे. तो सबसे पहले आपको हमारे टीचर का टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है? क्या उनकी एक्सप्लेनेशन क्लियर अंडरस्टैंडेबल होती हैं, हेल्पफुल होती हैं? क्या आपको कंफर्टेबल फील होता है कि जब वो गाइड कर रही होती हैं? Yes, I am comfortable with her. Um, she is very kind and explain everything. जो भी हम नहीं समझ पाते. अच्छा. शी इज़ वेरी गुड इन बिहेवियर, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और वो हर चीज़ पोलाइटली और बहुत कामली समझाती हैं। थैंक यू. यस मैम, हमारी टीचर बहुत अच्छे से सब कुछ समझाती है हमें. हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाती है हमें. हमें हर टॉपिक अच्छे से समझ आने लगता है. बहुत फ्रेंडली टाइप है ओह, और काइंडली भी. थैंक यू. आपको क्लास की स्पीड कैसे लगती है? फास्ट है, स्लो है या बिल्कुल आइडियल है? क्या आपको हर कंसेप्ट डिटेल में समझ आता है? जी महक, आप बताएं. जी जी, मुझे तो समझ आता है हर चीज़ जो वो समझाती है ना। कुछ भी हम पूछ लेते हैं तो वो बार बार पूछते हैं, फिर बार बार भी वो गाइड करती हैं। हम्म. अच्छा मैम किरत, कुछ आप बोलना चाहेंगी? आपके रिव्यू नहीं आया. मैं कहना चाह हम्म. बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम. मुझे बहुत अच्छा लगा. वो सही पढ़ाती हैं, समझ भी आती है मतलब सही. और मेरी काफ़ी सारी ना मतलब जो मुझे नहीं था मतलब जो नहीं था मुझे याद आता, वो मैं जैसे मैम ने समझाया मुझे सही समझ लग जाती है. और मैं मतलब वो जैसे वो सेंटेंसेस बनवाती हैं कि दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है ये आपने मतलब करना है काम. तो वो सही रहता है कि मैम देखती हैं. ओके, थैंक यू. अच्छा, आप चाहते हैं कि आने वाले क्लासेस को कैसे बेहतर करें? क्या ज़्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, कन्वर्सेशन सेशंस करें, ग्रामर पॉलिशिंग करें या डेली यूज़ ऑफ इंग्लिश करें?
डेली यूज ऑफ इंग्लिश और कन्वर्सेशन पे करना चाहिए, और जो मैम समझाती है ना, उन पीछे पीछे जो रिवाइज पहली वाली क्लासेस में लास्ट वीक जो हम्म। क्लासेस थी उनमें से भी कुछ ना क्वेश्चंस करें, ताकि पता चले कि क्या गेन हो रहा है। ओके मैम सईदा, आप भी सेटिस्फाइड हैं इनकी महक की बात से? क्या आप भी ऐसा चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए? मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि कन्वर्जेशन ज्यादा होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो कुछ हमारे लिए होमवर्क होना चाहिए, ताकि कुछ वर्कशीट्स वगैरह ऐसी हम करें ताकि हमें जो है हम्म। वो हम्म। हम एक एक वर्ड को यहाँ पे एक एक सेंटेंस को सीख लेते हैं, वो सेंटेंस समझ में आ जाता है, हम्म। लेकिन कितना अंडरस्टैंड हमने किया है ये हम नहीं समझ पाते। अगर ओके। हमारे पास दूसरे एक्स्ट्रा सेंटेंसेस होंगे तब हम उनको देख के समझ पाएंगे कि हाँ ये हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि उसको हम अपने लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अच्छा तो ऐसा अगर है। उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मुझे लगता है तो होगा। वो मैम जब पूछेंगी ना आपसे क्वेश्चन जो उन्होंने लास्ट पढ़ाया है, तो उसमें से क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके। अच्छा, क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी स्पीकिंग में या ग्रामर में, विकेबलरी में और कॉन्फिडेंस में इस कदर कोई इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है? अगर कोई मोमेंट हो जिसमें आपको मोटिवेट किया हो, प्लीज़ शेयर इट। कोई भी करते हैं मुझसे। जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा क्वेश्चन भी समझ आ गया या अगेन मैं रिपीट करूं? नहीं, समझ आ गया आपका क्वेश्चन। अभी फिलहाल क्योंकि मेरा तो एक वीक नहीं, बेचारा जो है वो छुट्टी हो गई मेरी तो एक वीक की, तो एक ही हम्म। वीक मेरी क्लास, तो कुछ इतना ज्यादा मुझे इतना फर्क मेरे अंदर नजर नहीं आया, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा जाहिर है हम्म। इंग्लिश से कोई राब्ता है नहीं, और मैं पढ़ाती भी सब्जेक्ट मेरा इस्लामिक का सब्जेक्ट उर्दू में है। अब ओह मुझे अच्छा। क्योंकि मैं ओ लेवल्स पढ़ाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इंग्लिश को जो अपना इनहेंस करना चाहती हूँ, तो वो उस लेवल तक पहुंचने में शायद मुझे भी टाइम लगेगा मुझे जी लगता है। मैम, आप ये भी देखिए ना, आपकी काफ़ी क्लासेस बीच में स्किप भी हुई है ना, तो देखिए ना। क्लास स्किप हो गई ना बीच में, जी जी। तो अब वो ज्यादा नोट था, हम्म। और वो समझ तो आया, लेकिन उस लेवल का नहीं जो सामने सामने जो क्लास होती है उसमें जो होता है। आई थिंक मुझे मेरा ये है कि कॉन्फिडेंस अभी इतना बिल्ड नहीं हुआ। मैम तो हम्म। अपना पूरा देती हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी जो है ना वो बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, और समझ में नहीं आता कि क्या कैसे बात करें कैसे, तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो अभी तक नहीं आया। ओके थैंक यू। अच्छा सवेरा, आप बताइए, आप मुझे अपना रिव्यू दीजिए। यस मैम, मैं भी इनसे एग्री हूँ। ये लोग जो कह रहे ठीक है, मैम तो हमें अपना पूरा टाइम देती है, अच्छे से समझाती है। अगर कोई टॉपिक हमें समझना है तो फिर से दोबारा से पढ़ा लेती है। लेकिन जिस तरह अभी सईदा मैम ने कहा ना कि वो तो टीचिंग करती है, लेकिन मैं तो मदरसे जाती हूँ, वहाँ पर भी उर्दू का काम होता है। तो मेरे भी कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम किरत, आप बताइए। मेरा यहाँ के थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, मगर अच्छा। अभी तो शुरू की क्लासेस हैं, आगे बिल्कुल, जब मैं एक भी मंथ इसी या दो बात पे मंथ हूँ कि अभी बिल्कुल स्टार्ट है। जी, तो एक दो मंथ गुजरेंगे तो फिर देखते हैं कितना हम्म। और इम्प्रूव होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट रिव्यूज। आपका फीडबैक हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, एसेंशियल है। हमारी पूरी टीम आपको इंग्लिश लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। सो स्टे कनेक्ट एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप ग्रोइंग विद अस। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो आपके रिव्यूज़ लिए गए हैं इनमें जितना भी हमारे से हो सकता है, या जिसने जो भी मुझे सजेशन दी है, मैं इसमें कोशिश करूँगी कि अपने मेथड को चेंज करूँ, इम्प्रूव करूँ। तो अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए, वरना हम क्लास को एंड करते हैं। हेलो। बस क्वेश्चन तो हमारा कोई नहीं है, बस इंशाल्लाह जब ये सेशन एंड हो हमारा तो हम बस बोलने लग जाए इंग्लिश। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, तो अब फिर हम ठीक है। क्लास को वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फी अहसनि जज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम। अल्लाह हाफिज।
वालेकुम सलाम।